جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ شروع ہوئی ہے، بالخصوص تاریخ کے اعتبار سے قابیل اور حابیل کی قربانی کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، اور کوئی امت ایسی نہیں کہ جس امت پہ اللہ نے قربانی نہیں رکھی، لیکن فرق ہے پہلی امتیں قربانی دیتی تھیں تو فوری رزلٹ آ جاتا تھا۔ جانور ذبح کیا جائے، کسی میدان میں چھوڑ دیا جائے، جسے آگ آ کے بھسم کر دیتی تو یہ پہچان ہوتی کہ فلاں بندے کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ نہ کرے اگر یہ آج ہم میں ہوتا تو میڈیا کا دور تھا، ہر گلی میں لوگ کیمرے لگا کے کھڑے ہوتے کہ پتہ کرو بڑا بنا پھرتا ہے، قربانی دی ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ دعا ہے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور یہ پردے ہیں ہمارے رب کے امت محمدیہ پر، جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ گفتگو میں یہ نکتہ سمجھیے گا کہ پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے لوگ قربانی کے اوپر متفق ہیں، اور ہر مسلک قربانی کر رہا ہے۔ وہ قربانی جو بعد کی ہے، جب سب کا اس پہ اتفاق ہے، تو اس قربانی سے پہلے جو 20 قربانیاں ہیں ان پہ ہم اتفاق کیوں نہیں رکھتے؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اور یہی آج کی گفتگو کا مدعا، مقصد اور ہدف ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں پہلے ایک گزارش کر دوں کہ کچھ لوگ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن اندر کھاتے ہیں، ان کے سارے درد یا تو حج پہ جاگتے ہیں یا قربانی پہ جاگتے ہیں۔ کشتی کا حادثہ ہوا، سارے ٹوٹ پڑے کہ یہ قربانیاں چھوڑو، جانور ذبح کر کے کیا ملے گا؟ اس طرح کے غریب غرباء کو اگر یہی 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ دیا ہوتا تو آج یہ بیرون ملک ڈنکی پہ جا کے ظالم لہروں کے اور ان لوگوں کے جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں ان کا شکار اور لقمہ اجل نہ بنتے۔ گزارش ہے، بیت اللہ کے حج پہ چند لاکھ کے خرچے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے اور نہر ہوتے دیکھ کے تکلیف ان بیچاروں کی حق بجانب ہے۔ لیکن ہم ذرا گزارش کر دیں کہ آپ کی یہ تکلیف روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے کے پیسے کو جو آگ سگریٹ کے نام پہ لگتی ہے وہاں کیوں نہیں جاگتا؟ جب ایک شخص گھر میں گاڑیاں ہوتے ہوئے پھر 1 کروڑوں کی نئی گاڑی لیتا ہے، آپ کا احساس اس وقت کیوں نہیں جاگتا؟ لہذا اللہ کے شاعر کے خلاف جتنی مرضی ذہن سازی کر لو، اللہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ غریب ہو کے بھی، کمزور ہو کے بھی۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ ادھار اٹھا کے قربانی کر لیں۔ قربانیاں جیب سے یا پیسے سے نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی ہیں۔ حج اور عمرے بھی
یہ صرف نوٹوں سے نہیں ہوتے، یہ وہ تڑپ ہے، وہ درد ہے، وہ دل، وہ تمنا، وہ آرزو ہے جو اللہ ایک مومن کے دل میں ڈالتے ہیں. اور یہی دعا آپ مجھ سے قبل سارے مل کے کر رہے تھے کہ اللہ اس سال موقع نہیں بنا تو اگلے سال سے ہی. آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ جو ہر قربانی پہ، ہر حج پہ اتنا زیادہ قوم کا درد لے کے پھرتے ہیں، اسے سنبھال کے رکھیے. یہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں غریبوں کے اوپر سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے، وہ آج بھی امت مسلمہ ہے. یہ عشر کو چلائیں، نصف عشر کو چلائیں، صدقات کو چلائیں، زکات کو چلائیں، گھر گھر کو ڈھونڈ کے بچے، خواتین، مرد، عورتوں تلک اگر پہنچتے ہیں تو آج بھی یہ مسجد اور مدرسے سے جڑا ہوا ماحول ہے. وگرنہ باقی لوگوں کو صرف درد اور تکلیف اور احساس کا ایک وقتی جنون تو ہوتا ہے، لیکن سدا بہار وہ اس نعمت سے محروم ہے. اس گزارش کے بعد میں پوری امت مسلمہ کو 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والوں کے جتنے مسالک ہیں انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی بہت اچھی بات ہے، قربانی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس قربانی کے لیے اس سے پہلے جو بنیاد میں قربانیاں رکھی ہیں اسلام نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام آدم علیہ السلام سے چل کے جناب خاتم اور جناب خاتم علیہ السلام سے چل کے قیامت کے روز تلک ایک ہے، وہ بدلہ نہیں ہے. یہ دین وہی ہے، اور اس دین میں جتنے بھی معاملات اور عبادات رکھی گئی ہیں ان کے اندر بنیاد توحید ہے، اللہ کی وحدانیت. اور یہ توحید مختصر سمجھ لیجئے، کائنات کی ساری ذاتیں مل جائیں، اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طرح اللہ نے اپنی یہ خوبی، اپنی فطرت اس پہ انسان کو بنایا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس فطرت میں بے شمار خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اصل میں اللہ کی صفات ہیں. اللہ نے انسان کو ودیت فرمائی ہے، لیکن وہ صفتیں لے کے، وہ عادات لے کے، وہ فطرت کی بیس لے کے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اس چیز کا مالک بن گیا ہے. یہ رب کی عطا ہے، وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی. ماں کے پیٹ میں دے کے لے لے اس کی مرضی. دنیا میں جنم سے پہلے وہ بلا لے اور صفت ختم کر دے، یہ اس اللہ کی مرضی ہے. کوئی اسے کہنے والا نہیں کہ ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں ہے. حضرات گرامی، یہ اللہ کی صفتیں کہیں دھوکہ نہ دیں. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی صفات میں یہ اصول یاد رکھیے گا. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، ہمارے کان ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، رب کے قدم کا اس بات ہے، قدم ہمارے بھی ہیں، اللہ کے وجود کا تذکرہ ہے، وجود ہمارا بھی ہے، تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے رب جیسے ہو گئے ہیں. لیسا کمثلہ شیء، یہ صرف ناموں کی مشابہت ہے. مثال، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو کیا ہم رب کے شریک بن گئے، رب جیسے ہو گئے؟ نہیں، ہماری زندگی ادھار ہے، مستعار ہے، رب کی دی ہوئی ہے. وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے پوچھنے والا نہیں ہے. کس موڑ پہ لا کے کب 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ کلر کا ہر کا حادثہ آپ کے سامنے ہے.
ये कश्तियों में मरने वाले आपके सामने हैं। दिन रात हम हादसे देखते हैं। हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये हादसे सबक देखते हैं कि कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है, किसी को बचा रहा है, किसी को मरवा रहा है। मेरी आंखों के सामने हादसा होता है, मोटरसाइकिल पे आगे बेटा बैठा है, छोटा सा, बाप चला रहा है, मां की गोद में एक छोटा सा बच्चा है, मां हामिला है। ये डंपर के नीचे आते हैं, सारे मर जाते हैं, और मां के पेट के अंदर जो बच्चा है, टायर गुजरने की वजह से वो पटाखे के साथ निकल के लोगों को वो पैदा कर रहा है। आपने जलजले में देखा, जब दुनिया मर रही थी, बिल्डिंगें गिर रही थी, वहीं एक बच्चे का जन्म लेना, ये तेरे रब की वहदानियत, सिफात में वहदहू ला शरीक, जात में वहदहू ला शरीक होने की दलील है। इसी तरह तीसरी चीज जो तौहीद के लिए जरूरी है, सारा जग मिलके तेरे रब को झुका नहीं सकता, वो अकेला सबको झुका सकता है। झुकाने की ताकत ये सिर्फ अल्लाह की है, वो इसीलिए माबूद है, हम इसीलिए आबिद और बंदे हैं। वो चाहे तो फिरौनों को झुका दे, नमरूदों को झुका दे, कारूनों के सर झुका दे, वो अबू जहलों को यूं मट्टी में मिला दे, लेकिन ये सारी ताकतें मिलकर तेरे रब की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। वो चाहे तो जमीन को हिला दे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये सारे मिलकर तेरे रब के अर्श को नहीं हिला सकते, इनकी अप्रोच वहां तक नहीं, लेकिन सारी दुनिया तेरे रब की मुट्ठी में है, और तेरे रब के जो है वो दायरा कार में है, तसर्रुफात में है। इसलिए सर झुकाया जाएगा तो सिर्फ उसके सामने जिसने इसे बनाया है। सारी दुनिया मिलके आए और किसी खातून को कहे काट के रख देंगे सजदा कर, मर्द को कहे तेरा कीमा बना देंगे सजदा कर, तुझे मार दिया जाएगा। मेरे और आपके मुर्शिद हादी और रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुत्ते ताऊ हुर्रिक, तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, कीमा बना दिया जाए, हड्डियों का चूरा बना के पीस के आग लगा के राख कर दिया जाए, तूने मेरी तौहीद पे कंप्रोमाइज करके शिरक नहीं करना। ये तौहीद हर इबादत की असास, हर नबूवत के और रिसालत के इस दुनिया में चलाने का बुनियादी सेरा वो अगर था तो तौहीद के लिए था। इसी तौहीद के ऊपर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 20 कुर्बानियां दी। हजरात, मुझे आपकी इस वक्त तवज्जो थोड़ी मकसूद है, बड़ा अहम बुनियादी नुक्ता। मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 27 गज़वे और हिजरत के सफर, और फिर वो सफर जो आपने तिजारत में किए हैं मिलाए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफर सुन के देख करके अकल दंग रह गई। ये जो सुन्नत अबीकुम आप पढ़ते और सुनते हैं कि कुर्बानी जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उस सुन्नत को लिया हमारे महबूब ने, वो बनी उनकी सुन्नत, उनसे लिया उनकी आल ने और असहाब ने, ये बनी उम्मत मुस्लिमा की सुन्नत, उनसे लिया हमने, ये बनी मोमिनीन की सुन्नत। ये सुन्नत के पीछे क्या है, आप दंग रह जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा होते हैं। इराक में बाबल की सरजमीन में बाज ने 7 कुर्बो जवार में एक और इलाके का नाम लिखा है, तो ये इलाके वक्त के साथ नाम तब्दील होते रहते हैं, डिवीजन बदलते रहते हैं, सूबे बसा औकात बदल जाते हैं, चेंज आ जाती है, सिले बदल जाते हैं। तो ये कोई वो तब्दीली हो सकती है, वगरना इराक की सरजमीन है, बाबुल है, वहां आप पैदा होते हैं, जवानी में आते हैं,
सारी कुर्बानियां जिनका मैं अभी थोड़ी देर में तज़किरा करने वाला हूं, उनमें से एक इंतहाई होशरुबा, दिल दहला देने वाली कुर्बानी थी कि वतन छोड़ दे। जलावतनी। इस जलावतनी में अपनी अहलिया को लेके इराक से शाम निकले। कहना बड़ा आसान है, आइए यहां से निकलिए, करीब जरा अफगानिस्तान का सफर कीजिए, पता चल जाएगा यहां से पैदल घोड़े गधे पे, पता चल जाएगा कि सफर क्या होता है, जलावतनी क्या होती है। मौसम, हालात, लोग, मुखालफत, अजनबीयत। शाम से फिलिस्तीन गए, फिलिस्तीन से मिस्र का सफर, मिस्र से जब हालात मजीद खराब हुए, लुबनान, लुबनान से उर्दन, उर्दन से सऊदीया की मौजूदा हुदूद तबूक, वहां से मदीना, मदीने से मक्का, मक्के पहुंचते ही बीवी बच्चे को छोड़ करके फिर हुक्म मिले कि वापस लौट जाओ। ये कुर्बानी अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह को वादा शरीक मानने वाला दे सकता है, वगरना आज के दौर में यह चीज मुमकिन नहीं। इस पैगंबर ने कितने सफर कर डाले, आधी दुनिया कदमों के नीचे रख के, हनीफ बन के, मुवाहिद बन के, अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए पूरी जिंदगी कुर्बानी का नमूना बना दी। आयत तो कुरान मजीद की है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन कभी देखना हो तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। वो पैगंबर जिनको कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चाल ढाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मगर सूरतुल मुम्तहना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उस वक्त जिन्होंने उनका साथ दिया, उनकी जिंदगियों को रब ने लक़द कानत लकुम, ये ऐसे ही नहीं है, अल्लाह ताला की वो हस्ती, वो जात जो पैगंबर को, मोहम्मद रसूल सल्लम को हमारे लिए उसवा बनाए, और जब तज़किरा करे मोहम्मद रसूल सल्लम का तो उनके लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसवा बनाए, तो पीछे कुछ है। आइए वो ढूंढिए क्या है। पहली चीज, तारीख ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अबाव अजदाद के ऊपर एक लंबी बात की है। मुझे उससे हट के जरा कुछ कहना है। जवानी है और बाप उस वक्त और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पेशा गॉड मेकर है। कुछ होते हैं किंग मेकर, जो बादशाह बनाते हैं, बड़ा नाम होता है उनका। आप पाकिस्तान में माशाल्लाह वाकिफ है कि सियासत की बागडोर किन के हाथ में होती है, हर शहर सल्यूट कर रहा होता है, मगर वो किंग मेकर नहीं, गॉड मेकर, कौम के इला बनाने वाली हस्ती। उस घर में आंख खोली है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बाप बड़े कमाल के उस वक्त के 12 महीने 12 बुत बनाते थे। 12 महीने 12 बुत। जैसे हमारे हर महीने में कोई ना कोई उसूल, ज़ाब्ते, रसूम, रिवाज, आदात मौजूद हैं। हर माह का बुत, और सेल लगती थी, कमाल लगती थी। वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये काम सीख लो, ये काम सीख लो। यहां बड़े सारे इंशाल्लाह आज मसले हल होंगे। अब्बा जी का कोई पेशा हो ना, वो भी 2 नंबरी का, गलत। हम हर चीज का फतवा पूछेंगे, लेकिन ये फतवा नहीं पूछेंगे हलाल है या हराम है। चल यार खानदानी काम है, जे किसी होर नूं दिता या असीं अड्डा छड्डिया तो कोई होर आके बह जू, करी जाओ। जेड़ा मौलवी बोलन लगे विचों थोड़ा जिहा चंदा भेज दो, और वो बड़ी मोहब्बत से कहेगा फुलां भाई इतने की रसीद कटवा गया है। कहा अब्बा जान या अबाती, अब्बू जी बड़ा नाम है इस पेशे का, आप इनके गॉड में करो, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता, ना मैंने सीखना है ना मैंने करना है। खैर बाप ने धमकी लगाई, बात आगे चली। कहा अच्छा बनाना नहीं तो फिर तू इदा कर,
डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, मैं बनाई जाना, तू अगे वेची आ, मार्केट च कड़ी आ, मार्केटिंग च आ जा। भाई आजकल तो मार्केट के अंदर जो लॉन्च है वो लॉन्च है, आपको पता है। गॉड मेकर का बेटा, अभी मैं नाम की बहस पे आज वक्त नहीं है, वगरना बताता कि अब्राहम अब्राहम, अबू रेहाम इब्राहिम, ये नाम क्यों पड़े थे। खैर उठे और कहने लगे अब्बू जी मैं पेशा कुर्बान कर दूंगा, मगर जो पेशा तौहीद के खिलाफ हो मैं जूते की नोक पे रख के कुर्बानी दे दूंगा। सर जी आज हमारे कितने पेशे हैं जो खिलाफ शरीयत हैं, खिलाफ तौहीद हैं, और प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बैठ के बड़ा मुतमईन होके बंदा कहता है जी हरज की है। भाई हरज तो कोई नहीं है, हरज तो किसी चीज में नहीं, आप उल्टा भी लटक जाए हमें क्या हरज है। प्रॉब्लम तो यह है कि वकार किस में है, दीन किस में है, मेयार किस में है। खैर बात चली, कहा पेशा भी कुर्बान, कहा चलो यार मार्केटिंग कर लो। भाइयों मार्केट करते हुए जब इस जेब में भी पैसे आ जाएं तुसी कहोगे है नहीं, इशारे करी जाता है, हमने रखी नहीं है ये वाली बाजू वजूहात पे। इधर भी डबल पॉकेट पैसे, साइड पे भी दोनों पे पैसे, शलवार वाली पॉकेट में भी पैसे, हाथ के अंदर माशाल्लाह बरीफ के थैले, शॉपर डबल ट्रिपल उनमें भी पैसे। तो फिर बंदे का दिल करता है इस तरह की चीज को कुर्बान करने का। और जब मार्केट में महंगा 3 पीस बिक रहा हो, पता करो जरा चनियोट में आके क्या क्या नहीं बिक रहा, पता करो जरा चल के टैक्सला में एक कुंडी लैन चले जाओ तो पता लगता है जो बोतो उसे पत्थर दा लैन तो रेट लगता है, बुत मत रेट लगाते हैं। सर जी बात आगे बढ़ गई, बाप ने कहा खैर है, क्या करेगा कल को, ना मेरे वाला काम अच्छा लग रहा है मैं बना के दूं, ना मार्केटिंग अच्छी लग रही है। ओए चलो इतना ही देख ले, डेली तो लगती है ना कोई थोड़ा बहुत अपना हिसाब किताब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेशे की भी कुर्बानी दे दी, डेली की भी कुर्बानी दे दी। मजदूर लोग हफ्ता हफ्ता खाली फिर लें लेकिन किते ना किते डेली लाउनी पै जाती है। पूरी सीरत इब्राहिमी में एक दिन भी ऐसा नहीं कि हालात से मजबूर होके कभी कोई बुत लेके मार्केट में इराक में बाबल में खड़े हो गए हूं कि लोगों ये बुत ले लो, ये पहले महीने का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, 12 महीने खैर के मजे के गुजरेंगे, ये तुम्हारी रखवाली करेगा। ऐसे नहीं हुआ। ये जब 3 चीजें कुर्बान कर ली ना, अब्बू ने पहले खुद समझाया। अब्बा ना वैसे आदत है कि खुद बड़ा मजबूत बन के लोहे की दीवार बन के खड़ा होता है और बच्चे को डांट डपट करके समझाता है। तो अब्बा जी ने कहा पुत गल सुन, मेरे घर रहना ही तो करना पैना है, मेरे घर रहना ही तो करना पैना है, नहीं तो मैं घरों कढ़ दांगा। सर जी शादी हुई हो ताजी ताजी, हाथ में कुछ हो भी ना, ते अब्बा कहे पुत माल बिस्तरा चुक ते टुर। आप समझ नहीं रहे होंगे अभी शायद इस कैफियत को, ये जिन पे बीती है उनसे पता करें कितना मुश्किल है। बेटे ने कहा वो घर भी कुर्बान, जिस घर में रह के मुझे शिरक के मजबूर किया जाए मैं तौहीद के लिए वो घर भी कुर्बान कर दूंगा। बाप ने यह भी कहा था सिर्फ घरों नहीं कढ़ांगा, वट्टे मार मार पत्थर मार मार रजम कर दांगा। सर जी अब्बा एक जुत्ती चुके ना दूजी वारी बंदा को सीधा हो जाता है। ये छितर खाण नहीं मैनू जमया तू, एवं जम के बह गए हैं। या अबाती में फर्क नहीं आया। अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में वो कायम रहा है, लेकिन अल्लाह का अदब उसमें भी नहीं आया। कहा अब्बू जान तेरे बेटे को तेरी नजरों के सामने कर रजम कुर्बान कर दूंगा। जब डट गए 4 कुर्बानियां बाप ने घर में देख ली, 5वीं के लिए भाइयों को बुलाया। यह अब्बा जी का अगला हथियार होता है, हर घर में चलता है, आपने भी देखा होगा। वो अपने ना भरावां नूं भेज दिंदा है, चाचे ताए जे समझाओ यार मेरे वाला मुंडा तो सिर चुकन लग पिया, अगू हाथ भी चुकदा अगू बोलता भी है। फिर चच्चे और ताए में जो अच्छा होता है दबके वाला, जरा थोड़ा जा टहके वाला, वो सददा उरे आ गल सुन। बुलाया,
ददियाल आए, इब्राहिम क्या सुन रहे हैं यार, थोड़ा होश कर, इतना अजीम पेशा, इतना बड़ा कारोबार, माल ही माल, दौलत ही दौलत, इज्जत ही इज्जत, तेरे बाप को किस निगाह से देखा जाता है, तुझे क्या इल्म? कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो वो काम करता है ਉਹਦੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ। कहा ददियाल भी कुर्बान। अगर तौहीद के खिलाफ बुलाए, नुक्ता जुमला एक बोल रहा हूं, अगर चोट लगने पे आए तो बड़ी गहरी चोट है, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। का पूरा ददियाल कुर्बान, अल्लाह की तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं, छठी कुर्बानी लगी है। प्यो ने सौहरियां दी खिदमत हासिल कर लियां, अगली चाल हुंदी है नानके, समझदे जे? वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहता नानके किन्नू किन्नू प्यारे ने, बहरहाल होते सब कोई है। आए आगे ननियाल बड़े, पुत की होया? कुछ नहीं यारो, रोला पे है। कहा हां, मुझे कहते हैं वो काम कर जिससे मेरे रब ने रोका है, जो तौहीद के मुनाफी है। कहा फिर क्या करने जा रहे हो? हम रोकते हैं, मान जा। कहने लगे ददियाल छोड़ चुका, कुर्बान कर चुका, बाप कुर्बान कर चुका, घर की धमकी कुर्बान कर चुका, रजम करने की धमकियां सह चुका, पेशे को कुर्बान कर चुका, हां अपनी दिहाड़ी कुर्बान कर चुका, माल दौलत कुर्बान कर चुका। अब अगर तुम भी रस्ते का रोड़ा बनोगे, वो ननियाल नहीं चाहिए जो मुझे तौहीद के खिलाफ लेकर के आए। सर जी रुकिए, यहां पे वजीराबाद में बड़े सारे नानके मजबूरी बन जाते हैं, बच्चे इधर उधर से भाग भूग के फिर भी कहते हैं यार मैं गल ते तुहाडी मान लैंदा, कहिंदे भी सही जे, पर नाना अबू जेड़े ने ना उन्हां दा मुंह मुलाया मारदा। ठीक हो गया, कुर्बान कर दिया। सर जी अगला पत्ता खेला है कौम ने, और वो पत्ता है यारों का। इतना मजबूत पत्ता है, इतना मजबूत कार्ड है। दादाजी ने सुबह उठाया, बच्चा नहीं उठा, बाप ने उठाया नहीं उठा, मां ने उठाया नहीं उठा, भाइयों ने उठाया नहीं उठा, बहनों ने उठाया ये नहीं उठा। बाहर एक मखसूस कोड वाला हारण बजया दरवाजे ते, मेन गेट ते, नाल पोली जी सीटी, छाला मारदा उठ के भज के गया। आ भी मलन की लोड़ नहीं, पता की लग्या कि यार आए ने। मुंह भी नहीं धोता तो कुछ नाश्ता भी नहीं किया, खादा पीता भी नहीं, छड़प्पा मारिया तो बैग ते नाल बह गया। सारे घर वाले कहते साडी की वैल्यू, साडे नालों ते यार ही चंगे रहे। यार जो मनवा लेते हैं ना, वो कोई रिश्तेदार नहीं मनवा सकता। अक्सर घरों की यही परेशानी आती है, मौलाना कोई वजीफा बता दें, बच्चा यारों में ज्यादा बैठने लग गया है, उन्हें तवज्जो और अहमियत ज्यादा देता है, हमारी परवाह ही नहीं है, घर घर की कहानी है। आए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, सर जी यहां रोकूंगा, बैठे हुए हैं, थोड़े अफसुर्दा हैं, तो कहने लगे इब्राहिम की होया है, पता तो सी पर यारां दा अपना अंदाज। कहंदे छड्ड मेले ते चलीए, 2 मिनट खावांगे पीवांगे, इधर उधर दियां जिवें हुंदियां ने, दरिया ते रुकांगे, मौज मस्ती करांगे, तुम ही फ्रेश हो जाएगा। कहा मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, जाओ शाबाश। इन मेलों और ठेलों और दुनियावी रौनकों से हमें खुशियां नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। इन्नी सकीम, जैसे बीमार को मीठा मशरूब भी कड़वा लगता है, रब की तौहीद के पहरेदार को ये मेले, ये ठेले, ये सर्कसें ये अच्छी नहीं लगती। जाओ अपना काम करो। यारों की भी कुर्बानी देके रख दी। दे पाओगे? यार मैं कला एक पासे हाँ, मेरे 10 यार एक पासे ने, हुण मौलाना मैं की करा। वो भाई उन 9 को तौहीद पे लेके आ, दावत दे, कुर्बानी कर, भले ऊंट की कर, कुर्बानी कर गाय की कर, कुर्बानी कर बकरे छतरे की कर, कुर्बानी कर जो मर्जी करनी है,
लेकिन उस कुर्बानी से पहले आज उन यारों के याराने और दोस्ताने को भी देख जो तुझे गुमराही की तरफ, जलालत की तरफ, शिरक की तरफ, रसूम की तरफ, रिवाज की तरफ लेकर के माइल हो रहे हैं, कायल हो रहे हैं, और तू घायल हो रहा है। ये भी कोई कुर्बानी देगा? और याराने सिर्फ जवानों के नहीं होते, बाबियां दे भी बड़े जे। मंजा ग्रुप, थड़ा ग्रुप, ताश ग्रुप। कल मैं एक इलाके च परसों गया ते उथे मलंगी बूटी ग्रुप, मलंगी बूटी ਤੁਹਾਡੇ भी लागे लागे होंदी है थोड़ी बहुत पंग जी, भंगी ग्रुप, ये फुलां ग्रुप, बस बैठे, वक्त गुजर रहा है। आइए, एक और कुर्बानी होने लगी है। कौम ने अपने उस दौर के जो नजरियात थे वो ला करके मुनाजराना हैसियत में पेश किए। कहा इब्राहिम हर वेले गुस्से च नहीं रहीदा, थोड़ा जिहा सोच। अज कोई सानू कहे लाइट जो चली जावे ते छत ते सोलर पैनल लगा होवे ते यार पूरी दुनिया नू सूरज धुप भी दवे, गर्मी भी दवे, लाइट भी दवे, पावर भी दवे, एसी भी चलावे, ठंड भी पवे, ट्यूबवेल भी चलन, पानी भी चले, यार भला इन्नियां तुहाडे नाल मेहरबानियां कोई होर कर सकदा है? ते अगे कहे यार अल्लाह होएगा पर सानू हर वेले गर्मी च वेखो की हाल है। ते सूरज इन्ना कुछ देन दिया ते फिर भी अल्लाह नहीं। रात को हसीन चांद बनाए, सितारे टिमटमाए, क्या ये रब नहीं है, इलाह नहीं है? तेरा बाप जिनको घड़ के करता है, चलो उनसे तो तेरी नाराजगी हुई, ये तो आल ओवर द वर्ल्ड पड़े हैं। आधे कहा ठीक है चलते हैं, सितारे देखे, टिमटमाते रहे, बुझ गए। कुर्बान जाऊं कुरान तेरी अदा पे। आए सितारों को देखा, क्या बोला जब बुझे ना? कहा याद रखो इन सितारों से क्या पूछूं, कब दिन मेरे फिरते हैं, ये तो बेचारे खुद हैं भिखारी, डेरे डेरे फिरते हैं। अब कहीं, कल कहीं, रात कहीं, अगले घंटे और कहीं। चांद डूबा कहा कुर्बान, सूरज गरूब हुआ कहा कुर्बान। कहा तुम्हारा ये इल्म नुजूम भी कुर्बान। कुर्बानियां दे के रख दूं, ये सारे मखलूक हैं मेरे रब की जो इनको पैदा करने वाला है। तुम्हारा सफर चांद सितारों पे रुक गया, मेरा सफर इनके खालिक और मालिक और अर्श बरी के जो है वो इलाह और माबूद तलक है। मैं तुम्हें उनकी दावत देता हूं। बड़े सारे लोग आएंगे। पता है कुर्बानी से पहले अगर ये नुक्ता समझ आ गया तो आपका आज कैसे गुजरेगा, आपका कल कैसे गुजरेगा, आपका अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, आपका महीना कैसे गुजरेगा, आपका साल कैसे गुजरेगा, आपकी कुंडली कैसे गुजरेगी, आपकी ये मंगनी कैसी रहेगी, आपकी ये शादी कैसे रहेगी, आपका ये होने वाला मंगेतर कैसा रहेगा, आपकी मंगेतर कैसी रहेगी, तेरे हाथ की लकीरें क्या बोलती हैं, तेरी कुंडली का कॉम्बिनेशन करते हैं। ये अगर कुर्बानी करनी है तो पहले इन रसूम और रिवाज और खराफात की कुर्बानी दे और बोल। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास आए कि सर जी कोई नागी दे छो, सारे घर लड़ाई बड़ी रही है। मैं ही पाया सी तो मैं उतार के दे देता। मैं क्या सरकार लवो ਇਹਦਾ खास वसफ जी। मैं आख्या जी पहली तो गल ये दोनों पासों नजर आता है। जैनवन पत्थर है हजरे अबीयत से जन्नत च उतरिया सी। हजरे असवद बनन तो पहले ये इदां दा सी, बड़ा महंगा करके लभ्या। एदी खूबी ये वे नजरे बद पड़े तो रिफ्लेक्ट कर देता है, मोड़ देता है। कोई हसद करे तो मोड़ देता है, कोई बुरी सोच रखे तो मोड़ देता है, कोई गाली निकालने लगे तो मोड़ देता है, कोई तलाक खुले की सोचे तो मोड़ देता है। कहता सर जी ਇਹਦਾ रेट की लगेगा? मैं क्या तू मुफ्त लै जा। कहता एडा कीमती पत्थर ते मुफ्त, लोग तो बहुत पैसा लेंदे ने। मैं क्या हाँ जी यार मैं इस दफा जो घर बनवाया सी ना ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ वाइट पत्थर लवाया सी, थोड़ा जिहा बच गया, मैं कट के ਇਹਦੇ ਚ मढ़ा लिया। वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। ये तुम्हारे बुत, ये तुम्हारे चांद सितारे, ये हाथों की लकीरें,
इन पे ना जा ए मुस्लिम, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकता। इनू तो पासा परतन ਲਈ भी मैनू आप कहना पैना इला परत यार, ये मेरे हालात बदलेगा। कहन लगा जी ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਚਾਕੀ ਲਈ। मैं कहा यार ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਈ, बड़े बड़े चौधरीਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੀਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? मैं कहा जी वो 5 ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, 5G 5G। जब 2G आया था 3G एक बोतल भी थी ना, आप पीते रहे, पिलाते रहे आपको तेज फास्ट, फिर 4G, अब 5G 5G ऐसे जे जिन्हां दी ताकत चौधरी बनाउंदी जे कुर्बानी तो पहले कुर्बानी, 10 बकरे भी कुर्बानी कर ले। अगर घर में संभालने वाले 5 जीओं में से कोई एक जी नहीं, वैसे मैं इनको 5Bs कहता हूं, MBs का दौर है, लेकिन फिर भी पंजाबी में चले ले 5G। पहली जी अम्मी जी, जिस घर की मां जी जिंदा दिल शेर दिल अपने शौहर का साथ देने वाली है, वो कब्रों में भी चला जाए फिर भी उसकी पगड़ी का शिमला ऊंचा रहता है, नाम जिंदा रहता है। हम बखर में गए, कॉन्फ्रेंस थी, रात को मेरा आखिरी खिताब 2 बजे, सारे कहन लगे जी मां जी नूं मिल के जाना। मैं कहा सर माजरत मेरे को एक काम नहीं होता, मैं क्लास भी लैनी है। कहते जी ये नहीं हो सकता, जाना पैना। घर में गया, पता चला कि अम्मा जी की उम्र 65 साल है और अपनी जवानी में जितनी भी कॉन्फ्रेंसें होती थी 3 दिन फ्रेश रोटी सालन मां जी का पूरा ग्रुप चलाता था, किसी भी मेहमान को रोटी ठंडी नहीं दी जाती थी। सर जी ये शोहरत जो आज मैं वजीराबाद में बैठ के उस घर की कर रहा हूं, किसकी वजह से है? ये पगड़ी का शिमला ऊंचा। पहली जी मां जी 65 साल की उम्र में भी कॉन्फ्रेंस। कहती पुत जेड़ा तेनू आखिरी खाना गया ठंडा तो नहीं सी? मैं क्या नहीं मां जी। कहते मैं हथी बना के भेजे। सर जी आज माशाल्लाह सारा कुछ मुयस्सर, सुई गैस भी है, सिलेंडर भी है, ओवन भी आ गए हैं, तो फिर भी बच्चे नू फीडर ठंडा ही पियाया जावे, तो फिर इस बच्चे ने कल चौधरी की बनना है? पहली जी अम्मा जी, दूसरी जी बहन जी। बहनें भाइयों के सर के शिमले ऊंचे कर देती हैं। भाई के मेहमान आए हैं, जी भाजी जी वीरे तुसी उन्हां च बवो बस आया। तीसरी जी बेटी जी, चौथी बीवी जी, इनू भी जी आखीदा है। हां जी इनू ही तो जी क्या, इन्हें बाद चम्मा जी बनना है। और आखिरी जी बहू जी। बहू जी जहां जहां ये 5 हैं या इनमें से कोई एक खड़ा है, आज भी वहां चुदराहट कायम है, वहां डेरे चलते हैं। तो जिथे पंजे दियां पंजे माशाल्लाह सुतियां होण, तो कहण रोटी तंदूरों ले आओ। सुनिया जे ना फिर की हुंदा है। मैं सिर्फ थोड़ी सी गर्मी कम करने के लिए कह रहा हूं, वगरना ये मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है। तंदूर ते जाके काली पाइयो, जल्दी करो रोटी दे, मिंट लाए। कहंदा चौधरी जी एडी तेरी फुरदी हुंदी ना, तो फिर इत्थे तंदूर ते ना ओनू घर पकवा लेनो। हौसला रख जरा, मुठ ना। सबक क्या मिला? कुर्बानियां। एक और कुर्बानी आ गई। कहन लगे जेड़े तेरे अब्बा जी बुत बनाउंदे ने ना, बड़े वड्डे वड्डे इलाह ने, इन्हां नाल पंगा ना लई, ये लक तोड़ देंदे, लत भन देंदे, ये वो कर देते हैं, वो कर देते हैं। कहने लगे अच्छा ठीक है। ये कह के जदों यार मेले ते गए ना, तो कहंदे तुसी वापस आओ जरा, मैनू वापसी ते मिले जे। वापसी पे आके देखा चांद भी हार चुका, सूरज भी हार चुका, सितारा भी हार चुका, कुर्बान किए जा चुके। कौम के नजरियों की कुर्बानी दे दी, माबूदों की भी कुर्बानी हो गई है। लिया है कुल्हाड़ा,
टुकड़े टुकड़े करके बड़े के कंधे पर रख के आए और कहने लगे हाय तुहाडा की हो गया ते कौन ते किदां ते एक ही कीती तुहाडे नाल। अंदरों ते कहंदे होने ने तुसी अपने आप नूं नहीं बचा सके ते सानू की बचाना है, पर ऊपर से मुशरिक बड़ा मजबूत होता है। कुर्बानी उसे सिखाती है कि कुर्बानी क्या है। कुर्बानी से पहले कुर्बानी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पंच लगाया, ओए मेरे से क्यों पूछते हो, ओ जिदे मोढे ते घोड़ा पिया उन्होंने पूछो। ते फिर अंदरों बोले सी इब्राहिम तेनू पता है ये बेचारे कूंदे कुसकदे नहीं, ये बोलते नहीं, इन्हां नू की पता, ये तो रख रखाव लई असीं रखे ने, चल यार तू ही दस दे। हजरात फौरी तौर पर रिपोर्टिंग हुई, मार्केट में लगी और माशाल्लाह एजेंसियां हरकत में आई, बात फौज सिपा तक पहुंची, बात नमरूद तक पहुंची, वार्निंग पे वार्निंग दी गई। पुलिस आई तो कहा कुर्बान, नमरूदी फौज आई तो कहा कुर्बान, जो करना है कर डालो। बादशाह थोड़ा जिहा सियाणा सी, बादशाह वैसे भी सियाणे ही हुंदे ना, हर सियाणे भाई नूं आपां कह नहीं दिंदे तुसीं भी माशाल्लाह बादशाह ही हो। सियाणा सी कहण लगा यार उन्होंने मेरे कोल सदो मैं समझाऊना। आए हाँ इब्राहिम तेरे बारे में ये रिपोर्ट आई है। कहा जी किसको इला मनवाना चाहता है, कहा अल्लाह वादा उला शरीक। कहा क्या करता है, खूबी क्या है, कहा खूबी ये है कि वो जिंदा को मार देता है, मरे हुए को जिंदगी बख्श देता है। कहने लगा एक ही बाकी गल तुसी सुनी है, एक नूं सद्या ते ओनूं मारता जिहदा गुनाह कोई नहीं सी, दूजे नूं जेलों उम्र कैद चढ़ाई ते चल अल्लाह दी सुपुर्द। मौज लग गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई ये माठा तिरा के ये हाले उच्चे पानी च तरन डिया है, कोशिश करन डिया मैनू डेगण दी, इनू जरा थोड़े जे अगले पानी च खड़ो, गहरे पानी च। पुरानी कुश्तियां होती थी गहरे पानी में, गोते दिए जाते थे, कौन ज्यादा देर सहता है। ले जाया गया, कहा आ इधर आ, बोल मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकाले मगरब में गुरूब कर दे। अगर तेरे में ताकत है निकाल सूरज को मगरब से और गुरूब कर मशरक में, फबोहित अल्लाज़ी कफर। सर ये मुनाजरा ऐसे नहीं था, इससे पहले एक पेशकश हुई थी, कहा तू हमारे गॉड मेकर का बेटा है, वजीर मजहबी उमूर बना देंगे। वजीर मजहबी मुल्तान के एक बाबा जी, उन बाबा जी के एक मुरीद वजीर आजम बन गए। उन्होंने अपने बाबा जी के बेटे को वजीर मजहबी उमूर लगाया था कि नहीं, वो जो हज मैटर बने थे, वो गाड़ियां, वो ऊपर बत्तियां, वो माशाल्लाह झंडे, वो प्रोटोकॉल आगे पीछे डाले, किसको अच्छा नहीं लगता। कहा इब्राहिम वजीर मजहबी उमूर इराक का, कहा जूते की नोक पे ऐसी वजारत कुर्बान कर दूंगा जो रब की तौहीद के खिलाफ आए। कहा बैठ मुनाजरा कर, टेबल टाक कर। टेबल टाक हुई, जब देखा कि बात नहीं बनी, कहा इसको जला दो, हर रिकू। बाकी वाकया आपने सुना हुआ है, मुफस्सिरीन जो रंग भरते हैं, कमाल भरते हैं, खिताबत उसमें मजीद जलाल ले आती है। अग्गा बाल लिया ते हुण सुटना किदां पता ना लगे। मशीन भी कोल कोई नहीं, मशीनरी भी जवाब दे गई। फौजियां नूं कहण तुसीं छाडो, कहंदे जी साडा की कसूर है, साडे भी एवें नाल तिक्के कबाब बनाओगे, ਇਹਦਾ ते है। अग इन्नी बाल ली जे पागलों को, पहले हिसाब नाल इहनूं उत्थे रख दे, लकड़ां बाहर जुड़दे, फिर अग लाउंदे हो तुसीं, पहले अग ला के बह गए हो। बड़ी बड़ी दास्तानें लिखी हैं। तंग आण के कहण लगे इब्राहिम तू अपे ही टुर जा, चल। कहण लगे मैनू की लोड़ पई है, छड्ड आओ। अल्लाह अकबर। कहानी अपनी जगह, जान को कुर्बान करने का आसान काम नहीं है, ये रास्ते आसान नहीं है। कुर्बानी दे दी, कहा मुझे अगर मार के तुम राजी हो तो चलो कर लो, लेकिन तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं। आग जलाई गई, तैयार कर दिया गया, मंजनीक बनाई गई, फेंक दिया गया। आसमान से जिसने आग में जलाने की तासीर रखी, आवाज दे दी, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामा। मेहमान आ रहा है, ज्यादा भी टेंपरेचर थले ना लै जाओ कि कंबल लेना पै जाए। एसियां च लेंदे हो ना, ते इन्ना गर्म भी नहीं कि पसीना आ जाए यार नूं। दो में नहीं बहन बहन सलामा। सर जी आग ने नहीं जलाया, ये एक अलग बात है, अल्लाह का फैसला। छुरी ने नहीं काटा, अलग बात है, रब ने काट खत्म कर दी। जिस समंदर ने
फिरौन को डबोया था, उसने मूसा को नहीं डबोया। ऊपर कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है। आइए सुनिए, कुर्बानी से पहले ये कुर्बानी दी जा रही है। खैर जब नहीं जला, आखिरी फैसला हुआ, फौज भी मिल गई, सिपाह भी मिल गई, गदियाल भी मिल गए, ननियाल भी मिल गए, यार भी मिल गए, आस्ताने भी मिल गए, आशियाने भी मिल गए, बुजुर्गों के जो है वो उस वक्त के सज्जादा नशीन भी मिल गए। कहा सारे मिलो, बाप को भी बुलाओ, निकालो इसको, फारिग करो ये इस मुल्क में रह के। सर जी शाला दुनिया च कोई कल्ला ना होवे। कल्ला अगर हो सकता है तो सिर्फ एक वहाबी हो सकता है। मैंने पूरी तारीख में ढूंढा है, जुमले पे जरा गौर करना, ढूंढना। अल्लाह वहदहू शरीक है, अकेला है। तारीख में वो दिन आया जब जिंदगी भर की दावत पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक भी फर्द नहीं मिला। सूरह मुम्तहाना में जो है वल्लज़ीना माअहू, ये अगला मामला है। एक भी फर्द नहीं। दिल पे क्या गुजरी होगी। कह देना बड़ा सौखा है। गए हो किते पिकनिक ते पहाड़ां वाले कहण आ मुंडा जेड़ा इत्थे छड़ जा, ये नहीं असीं देना। उम्र 86 साल के लगभग हो। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस वक्त 80 थी। अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और दुनिया ताने दे रही है, ताने दे रही है। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। इब्राहिम तो साडे बुजुर्गों ने नहीं ना मन्निया, उन्हां सूह बन दी है, नहीं ना होने देंदे कुड़ी मुंडा, लई फिर बुढ़ी नूं। तारीख ये भी लिखती है कि दुनिया की सबसे एक नंबर हुस्नो जमाल में अगर कोई उस वक्त खातून थी तो सैयदा सारा थी और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आलिया थी। खैर निकलने लगे, साथ चल दी, शाम पहुंचे, फिलिस्तीन क्रॉस किया, समंदर की हुदूद आई, मिस्र में दाखिल हुए। फिरौन वक्त के दिल में जो एक मशहूर वाकया बात आई, और जो उस वक्त की हसीनो जमील मिस्रियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, ये शादीशुदा होके भी। फिरौन वक्त का दिल आया। जब हकीकत का पता चला, किस्सा मुख्तसर, उन्होंने अपनी बेटी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दी। जैसे मारिया किब्तिया रसूल सल्लम को वहां के लोगों की आदत थी कि जिसको वो मान जाते थे उसको अपनी बेटी या कोई जो है वो इज्जत आबरू गिफ्ट कर देते थे, और ये हार मानना होता था। खैर तारीख जो लिखती है यहां सुनने वाला है। आपके साथ सबसे ज्यादा बनी इसराइल की दुश्मनी है, और आज के क्रिश्चियंस और ईसाई कहते हैं इस्माइल अफजल नहीं है, इसहाक अफजल है, क्योंकि जनाबे इसहाक सैयदा सारा से हैं, और सारा जो थी वो असली बीवी थी जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और जो उन्हें हाजिरा मिली थी ये लौंडी की हैसियत से मिली थी, इसलिए इस्माइल लौंडी के बेटे हैं। उनका वो मुकाम और मर्तबा नहीं है जो इसहाक अलैहिस्सलाम का है। लेकिन हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको दिया, उन्होंने निकाह करा, अल्लाह ने पहले उनसे बेटे से नवाजा, और वो इंसानी क्लैश आना था कि बीवी ने कहा आसमान ने आजमाना था। अच्छा इन्ने साल मांगते रहे, नहीं लभ्या, एक कल आई ते अल्लाह ने मुंडा दे दिता है, चल इनू उत्थे छड़ के आ जिथे नामो निशान ना हो, नामो निशान ना। सर जी इत्थे जरा जेड़े दो जियां दे विच फसे हो, दो करा बैठे हो ते फिर फसे हो ना दसन जोगे ना छड्डण जोगे, सोचिए छोड़ना। कहा छोड़ के आओ, मिस्र से निकले, नक्शे पे देखना, लुबनान में आए, फिलिस्तीन में आए, चलो दूसरा रूट ले लें, उर्दन से आए, सऊदीया में दाखिल हुए, मक्का पहुंचे और पूरे मक्के में एक भी दरख्त नहीं था, बेआबो गयाबादी, कोई कुआं नहीं है, कोई नलका नहीं है, पानी की जगह नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई अता पत्ता नहीं है दाएं बाएं का। हालात इस कदर, कोई जर्नल स्टोर नहीं कि कुछ जरूरियात जिंदगी सौदा सलफ ले लेंगे या दूध ले लेंगे या पानी ले लेंगे। जब वहां पहुंचे कहा इब्राहिम, बुढ़ापे में मिला जी, अल्लाह जी, कहा इन दोनों को छोड़ो और वापस हो जाओ। सर जी बीवी की कुर्बानी, लोग बाप कुर्बान कर देते हैं, विरासती घर कुर्बान कर देते हैं, मां बाप रिश्तेदार कुर्बान कर देते हैं,
لیکن جیڑی بیوی اینو نہیں، اینو لے کے 2.5 مرلے دے مکان چ بھاویں وزیرآباد دے کسے گوٹھ چ کیوں نہ لبے اوتھے آ جانا، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا۔ ابا پھر بھی ابا ہے، لیکن بیوی بھی چھوڑ دی، چھوٹا بچہ بھی چھوڑا۔ یہاں میں مفسرین کی آراء کو نہیں لیتا، کیا کیا ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی، قرآن نے جتنے اسلوب میں چلایا وہی چلیے۔ کتے لاری اڈے تے اللہ نہ کرے بچہ تے بیوی گم ہو جان، پتہ چل جائے گا، سامنے آنکھوں کی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑھاپے میں جا رہے ہیں، پہنچتے ہیں اللہ بیٹا اسحاق دے دیتا ہے، عمر گزرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب اسماعیل بڑے ہو گئے اتنے سال کے، بھاگ کھیل، ابھی وہ زمزم کے معاملے، ابھی وہ صفا مروہ کی دوڑ کے معاملے سارے رکھیے اپنی جگہ پر۔ قربان ماں نے کیا کیا کیا، آگے پیغمبر نے کیا کیا کیا، رب نے بدلے میں زمزم کیسے دیا، لیکن جب آئے تھوڑے دن ہی رہے نے، کتنے لکھے مفسرین نے، قرآن کہتا ہے نہیں، آندے کہندے پتر خواب دیکھے میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب، پیغمبر کا خواب، اللہ اکبر، قربانی سے پہلے یہ قربانی۔ مجھے پچھلے سال ایک دوست نے قربانی کے بکرے کی تصویر واٹس ایپ کر دی، میں دیکھ نہیں سکا تو کالوں پہ کالے ہے، میں نے فون اٹھایا، کہندے واٹس ایپ دیکھو ذرا، میں نے دیکھا تو بکرا تھا، کان تھوڑا سا کٹا ہوا تھا، اے حساب سے کہندا جی یہ دسیو قربانی تے لگدا ہے، میں کیا اپنی تصویر بھیج، کی مطلب اپنی کیوں، میں کہ پتہ لگے نا لین کون ڈیا ہے تے اے دے بارے پوچھن کون ڈیا ہے۔ غصہ کر گیا، فیصلہ آبادی تھا، سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تصویر بھیجی تو میں کیا تیرے لیے جداں دا مرضی لے لا، لولا لے لا، لگڑا لے لا، کانا لے لا، انا لینا لگ جانا۔ کہندا جی وہ کی قربانی دی شرطاں نے، میں کیا کلیاں جانور چی شرطاں نے، جنہیں لینیاں او دیاں کوئی شرطاں نہیں، او دا کان کٹیا ہے تے پتہ نہیں لگو کہ نہیں، پوری دی پوری داڑھی کٹی ہے، پریشانی کوئی نہیں۔ سر جی سنیے، میرے فرسٹ کزن کا ایمبیسی میں انعام نکلا ہے، ایمبیسی سگریٹ، پرانا پنا ملیا، پیندا نہیں سی، فل کیتا بھیجیا، انعام نکلایا، کسی نے کیا ہوئے حرام ہے، فتوا لین لی بہاولپور چلا گیا، پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ ملے نہیں، بیٹا عبد الرحمان مکی، جوانی تھی، اے ٹکر پہ، کہنے لگے جی ایک فتوا لین آیا، سنیا جی فتوا، جی کیا فتوا ہے، کہندے جی ایدہ میرا انعام نکلیا ہے، جائز ہے کہ نہیں، کہندے پت نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، سوچ سوچ کے نہ جھٹ کو مسیتے جو بیٹھا سی، ہوں جھوٹ بھی نہیں چلتا، کہندے کو دا مانا نہیں، آخے پت تیرے لیے جائز ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھتا وہ لیے، وہ جس نے رب کو یہاں نہیں مانا وہ وہاں کیا مانے گا، جس نے پہلی قربانیاں نہیں کی اس کے لیے قربانیوں کی شرطوں کے چکر وکر سائڈ پہ رکھو تو عید نہیں ہے تو پھر کوئی عمل بھی نہیں ہے، پہلی شرط ہے، پہلی شرط۔ خیر واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اگے مفسرین دے طریقے نے اپنی جگہ، بہرحال ذبح کرنے کے لیے جب تیار ہوئے نا، تیار ہوئے سر جی، پھر اللہ نے بھیجا ہے مینڈا چھترا، اور اسے کہا ہے ذبح عظیم، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی، پیچھے ایک لائن لگی ہوئی تھی قربانیوں کی، اور پھر رب نے آواز دی، ابراہیم بس کر یار، بڑا آزما لیا تینوں، بس کر، اور نہیں چاہیے۔ چھترا قربان ہوا، اسی پولا پولا تے چوندا چوندا لے لیا، پھر چلو بکری، چھتری، وچھا، گاں، ویڑا، اونٹ، لیکن جیڑیاں پہلیاں قربانیاں سی نہ پتراں دی قربانی دے سکے، باپ نے بیٹوں کے غلط رویوں پہ قربانی دی، نہیں ہوا۔ پتا چلا اتنی قربانیاں دے کے اب کرنا ہے جانور ذبح، قربانی یہ بات کی ہے، وہ پہلے ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
یہ ہے تیرے رب کے لیے صلاح. کون سی صلاح؟ سلون سے وصل نہ ہو. صلاح کیسی؟ آج تک نمازیں پڑھی، رب سے ملا نہ سکی. رب سے ملے ہوتے. نماز نے 4 حالتیں دی ہیں: کھڑے ہوتے ہوئے، رکوع کی حالت میں آدھا جھک کے، سجدے میں پورا جھک کے، تشہد میں دھرنا دے کے. تو نے توحید کا اعلان کرنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ بکرے نے بھی بتایا. کھڑا ہوا ہے تو رب کے لیے، تو نے دونوں ٹانگیں پکڑ کے گرانے لگا تو بھی رب کے لیے، اکڑا ہے تو بھی اسی کے لیے، جھکا ہے گرا ہے تو بھی اسی کے لیے. چھری چل گئی ہے تو یاد رکھ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ تقوی ہے اور تقوی وقایا ہے جو رب کے کہنے پہ، آرڈر پہ عمل کر اور نہیں سے رکوائے، جہنم سے بچائے، جنت میں لے کر کے جائے. اور وہ ایک توحید ہے، دوسری سنت ہے. توحید و سنت کا زیور ہے تو قربانی خریدیے. اگر آج دنیا میں یہ، اس لیے میرے دوستو، عید سے پہلے، قربانی سے پہلے آج کا یہ ٹاپک، اسے زندگی میں پلے باندھیے، اپنی ڈائری میں سرے برق لکھیے، حالات زندگی میں لے کر کے آئیے، دوست احباب یاروں کو بتائیے اور کہیے کہ یہ وہ قربانیاں ہیں جسے سیرت ابراہیم کہتے ہیں. سیرت ابراہیمی کہنا بڑا آسان ہے کہ آج بھی آگ جو ہے وہ پھر ایک گلستان کا انداز پیدا کر سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے وہ وفا تو نبھا، وہ معیار تو لے کر کے آ. آئیے، جیسے سارے مسلک مل کے قربانی پہ متفق ہیں، ایسے ہم سب مل کے توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، رب کی کبریائی پہ اور پیغمبر کی سنت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. انشاءاللہ یہ قربانیاں دنیا میں بھی ہمارے حق میں بن جائیں گی اور آخرت میں بھی ہمارا حق ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قربانی کو سمجھنے کی توفیق دے جو اس قربانی سے پہلے ہے. وما توفیقی الا باللہ. ایک سوال کسی میرے ہی درس سے ہے کہ آپ کے درس میں ایک بات سنی تھی کہ اللہ کا نام ستار نہیں ہے. میں نے جتنی بھی خوردبینیں دوربینیں ہوتی ہیں وہ لگا کے کتب فقہ میں، کتب احادیث میں، کتب تفسیر میں ڈھونڈا ہے. لوگوں کے ہاں یہ اللہ کا نام مشہور ہے، پکارا جاتا ہے، ورد ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے. حدیث میں ان اللہ ستیر حیی، تمہارا رب پردے ڈالنے والا بھی ہے اور بڑا شرمانے والا ہے. حیون نہیں ہے، اکثر لوگوں نے اسے حیون پڑھایا. حیون، تیرے رب کو شرم آتی ہے کہ بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ہاتھ خالی موڑ دے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام توقیفی ہے، توقیفی جنہیں کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، اللہ نے اپنے لیے خود چنے ہیں اور وہ اسماء حسنہ ہیں، ان میں جو حسن ہے اسی کے ساتھ پکارنا ہے. تو پھر یا ستیر کہہ کے آگے آپ کہیں اللہ میرے پردے رکھ تو ٹھیک ہے. کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ باجی اس قربانی تو پہلے کو قربانی عادت سے عبادت کی طرف بدلنے لگا ہوں. کسی زمانے میں یہ ضروری نہیں تھا، مگر آج بہت ضروری ہے کہ حصے 3 کرو تو اگے اور بھی ایک کام کرو. جنہوں نے قربانی کرنی ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ قربانی دے، اس دفعہ وعدہ کریں اللہ سے. میں لاہور میں گیا تو وہاں مناظرہ لگا ہوا تھا، کئی مہینوں سے چل رہا تھا وہابیوں اور سنیوں کے درمیان. اوجڑی حلال ہے کہ مکروہ ہے؟ وہابی علماء کہتے تھے کہ حلال ہے، وہ سنی عالم بدلے میں جواب میں دلیلیں لاتے تھے کہ مکروہ ہے. میں گیا، میرا بھی درس تھا مغرب کے بعد، میں ذرا ٹائم پہ پہنچ گیا، جیسے آج آ گیا تھا اللہ کی توفیق سے. میں کہا جی سناؤ، کہندے جی ایک موضوع ہے تسی اوجڑی تے دسنا ہے. میں کہ اوجڑی ایڈی دوروں سفر کر کے ایک اوجڑی 2 منٹ دی گل ہے. کہندے جی اسی 3 مہینے تو پھسے ہیں، فلانی مسجد دا مولوی ساڈے نال بیسیا ہے. میں نہ چپ کر کے اس مسجد میں چلا گیا، لب و لہجے سے پتہ لگا سریکی ہے. میں اس سوال کا جواب تھوڑی سی تفصیل میں کسی وجہ سے دے رہا ہوں. میں گیا، میں نے ملا، سونا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیویں کیڑے علاقے دے وے کہ مظفر گڑھ دا.
मुजफ्फर गढ़ जिले के आगे एक एरिया था, पीछे अब ठोल लमजादिन, ये भी इलाका है एक बहावलपुर वाली साइड, रहीम यार खान चन्नीगढ़ से आ गया। मैं कि इतना आके 13 साल थी गिन, मैं कि मामला ठीक पे चलते ना कि बिया था यका ठीक है कि मैं वहां बेदा मौल भी मेरे चूने पै गए, चूने पै गए भाई, उन्हें मेरे वाल फड़े ने पुटन ने। हुआ क्या है आके मैं ओझड़ी को मकरू आ बैठा, वो आधे हलाल है, हूं सारी आपस में लगी पी है, हार कौन मने। मैंने कहा वजह क्या है? कहते मौलाना सच बताऊं 13 साल हो गए हैं, सराकी बोली तो आपको समझ नहीं आएगी, 13 साल हो गए हैं, जब भी मुझे किसी घर से गोश्त है अपनी कुर्बानी देने के काबिल नहीं, साडे लिए यहां आ हुंदी है नरगट जी नाल फेफड़े ते सब तो ज्यादा मिकदार च छिछड़े ते उस तो वध ओजड़ी ते मेरे तो बच्चे नहीं घर पक्सी, ये छिछड़े सादे कितने लेने के काबिल नहीं, आता कुछ है नहीं। भेजो माशाअल्लाह उन्हें कुर्बानी भेजी, इस वाक़े नूं 13 साल होने वाले ने, हुण नहीं किते उत्थे ओजड़ी का मसला बनिया। सर जी ये सवाल 3 हिस्सिਆਂ ਦਾ पता क्यों ਹੁੰਦਾ है? ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। हमारे यहां तो ऐसे होता है, आपका पता नहीं, ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सर जी किसी मालवी, किसी गरीब, किसी मिस्कीन, किसी यतीम, मैंने एक बच्चे को पूछा पुत कदी कलेजी खाधी? वो कहता जी अल्लाह की कसम असी कदी गोश्त नहीं दा मुंह नहीं वेख्या, कलेजी कितों खानी है? सर जी मेरा पिछला जुमा इस मौजू पे था। इस साल एक कुर्बानी दो, आदत को बदलो, इबादत में बदलो। जिन्ने घर दे विच दिल ते कलेजी निकलनी है ना, इनू घर पका के चखनी नहीं, कोई 2-4 गरीब हमसायां दे घर 4 प्लेटा भेज देनियां। हो जाएगा सर? सर चेंज आवे ना, इबादत का अपना मजा है, आदत तो है, जल्दी जल्दी करके भेजो, असी मसाला बनाया है ते माशाअल्लाह फिर की मजाल जे एक बोटी भी किसी होर नूं टुर जाए। करें ये चीज, अगर नहीं दिल मानता, वैसे हिस्से जरूरी नहीं है, कुरान की ऐसे इस्तिंबात है, बहरहाल कर लेने बेहतर है, ताकि असी फिर कोई ये ना समझिए कि सारा ही अपना है। यौम अरफा हज वाला दिन बनेगा या कोई 9 ज़िलहज्जा? ये मसला तुहाडे इलाके च बहुत ज्यादा चलता, मुकामी मुफ्ती हजरात तो पूछो जो मुनासिब समझण। मेरा जाती मौकफ है कि जितनियां भी इबादात ने ये तारीख नाल ने, उहदी वजह अल्लाह ताला ने जेड़े मताले रखे ने, मताले समझदे हो? आज एक जगह चांद सऊदीया से भी पहले निकलता है, 3 मुल्क हैं 4 जहां पहले निकलता है, तो उनकी ईद पहले होती है, तो फिर उस दिन का रोजा तो ईद का रोजा बनता है ना। तो इसलिए समझिए वल्लाहु ताला आलम, नाम यौम अरफा का है, तारीख 9 है, और यही बेहतर और अफजल है जिसे मैं समझता हूं। अगर किसी की राय इससे हट करके है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या फौत शुदगान की जानब से कुर्बानी? ये भी सवाल बस जान नहीं छड़ता। सर जी जिंदा लोगों को नमाज नहीं पढ़ होंदी, मरियां दी पढ़नी है, अपनियां होंदियां नहीं उन्हां दियां देनियां ने। यार जो जिंदा लोग है ना, किसी फौत शुदा की कुर्बानी देनी, उस जिंदा को भेज दो, पहली बात। दूसरी चीज, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत सिस्टम रखा है, अगर वालिदैन की तरबियत तुम्हारे मामलात में शामिल है तो कुर्बानी कर रहे हो ना, तुम नियत करो या ना करो, इरादा करो या ना करो, एक कुर्बानी एक घर वालों की तरफ से है। ये नहीं कि ये अब्बू की अम्मी की अल्लाह की रहमत को तंग और महदूद नहीं करें, पूरे खानदान के एक फर्द को जो जिंदा है उतना सवाब मिलेगा एक बकरे का जितना बड़े को करने वाले को मिला है। और हर उस बुजुर्ग को, दादा को, दादा परदादा आदम अलैहिस्सलाम तलक जितने हमारे अबाउ अजदाद हैं, ये उनके खाते में भी अजर और सवाब सदका जारिया बन के जाना है इंशाअल्लाह। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं और इस सवाल में गुम होने की भी जरूरत नहीं। अजान के बाद दुरूद शरीफ जो है कि इमदादी पढ़ सकते हैं। सर जी जेड़ा मर्जी पढ़ लो, दरूद सारे ही चलणगे, असी रोकते नहीं, लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक पढ़ना है, समझ रहे हो, लोकल और डोमेस्टिक बड़ी मार्केट में चीजें मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने जैनवन लेना है तो वो दरूद इब्राहिमी है जो अजान के बाद आपने पढ़ा है। बात समझ रहे हैं? चलने को तो मार्केट में हर चीज चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने जैनवन क्या है, लेना क्या है, चलाना क्या है, वो वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्राहिमी की शक्ल में।
مسجد کے آگے قبرستان ہو تو نماز ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، کیوں نہیں؟ مسجد کے آگے قبرستان، اگر مسجد بنائی گئی ہے بعد میں وہاں قبرستان کی جگہ مختص ہو گئی ہے، قبر پہلے ہے، پھر تو بالاتفاق کوئی حرج نہیں، لیکن درمیان میں دیوار ہے، آپ کی نیت قبروں کو سجدے کی نہیں تو درست ہے۔ اگر قبرستان کے اندر جان بوجھ کے مسجد بنائی گئی ہے تو یہ نقطہ نظر بھی ہے، محل نظر بھی ہے، اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بھی تو قبر ہے، سن لو، نہ مسجد نبوی کے اندر قبر ہے نہ قبر کے اوپر مسجد نبوی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد سائیڈ پہ تھی، حجرہ سائیڈ پہ تھا، وہاں پیغمبر جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں تو تدفین ان کی وہاں ہے، تب یہ قبر مسجد نبوی میں نہیں، اور مسجد نبوی بھی قبر کے اوپر نہیں۔ بعد میں توسیع کے تحت ضرورت پڑی تو کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی ساری جو ہے وہ قبرستان سڑکوں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں، تو قبر کے اوپر سے گزرنا منع ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایمرجنسی کے ساتھ ان کا حکم بدلتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ یعنی آن لائن یہ جو کیا لکھا ہوا ہے ارننگ، اچھا بزنس کر کے کمانا حلال ہے؟ پلیز تھوڑی سی وضاحت کر دیں بھائی، بڑا واضح سا سوال ہے۔ اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ جیسے بغیر آن لائن کے لائیو جو آپ بیچتے ہیں اس میں بھی کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے۔ آف لائن میں جیسے ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، اسی طرح آن لائن میں اگر سودا مجہول ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اور سٹاک آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، جسٹ جو ہے وہ کاغذی کاروائی ہے یا فون کی یا ایک میسج کی، تو پھر یہ صرف محل نظر ہی نہیں ہے، پوری طرح محل نظر ہے۔ جس سے آپ ارننگ کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ زنا کے زمرے میں، دیکھیے نا، ان کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے پیسہ نکالتے ہیں، وہ سود کے ذریعے ہے، وہ دھوکے کے ذریعے ہے، وہ فراڈ کے ذریعے ہے، وہ ڈاکے کے ذریعے ہے، وہ لوگوں کی جیب مار کے ہے، وہ کس طریقے سے ہے تو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کو سورسز کا علم ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو میرے بھائی مشکوک ہے یہ کم از کم، اور جو مشکوک ہے اسے چھوڑنا بھی عزت کو اور ایمان کو بچانا ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔